Hello everyone, how are you guys doing? This is Professor Siddharth Surana, Chartered Accountant, teaching direct tax to CA students throughout India, even students outside India. First of all, November 2016 CA final results are out. Even when the overall percentage is not on the higher side, I would like to congratulate all the students who have scored an exemption in direct tax. A lot of students have scored an exemption in direct tax. I would like to congratulate all of them through this video. I must mention this that I am only congratulating them. In no way I am trying to take any credit, because the maximum credit for marks goes to the student. In fact, the only person who deserves to get credit is the student. However, unfortunately for those students who could not clear, I would like to take full responsibility for that. And don't worry, I am with you till your next attempt. Very soon, I will be making a summary of amendments brought up by the Finance Act of 2016, which is applicable for May 17 and November 17 exams, that is assessment year 17-18. वो summary बहुत जल्दी बना के I will be uploading on our website gyanvijayacademy.com. Summary of case laws भी बना दूंगा. In any case you have any specific queries, तो वो भी you can let me know. I am going to show you all how you can approach me or how you can ask your queries to me. Don't worry, I am there with you and I am there with you till the end, till the time you don't cross the finishing line. Lot of students are making inquiries in a different ways. In different ways people are confused where to ask, where not to ask. मैं एक ही तरीके से आपको पूरा क्लियरली बता सकता हूँ. जिसको सीए फाइनल का फेस टू फेस लेक्चर करना है, मुंबई में 3 जगह पे होगा. चर्नी रोड में ज्ञान विजय एकेडमी, अंधेरी में खेतान एजुकेशन, बोरीवली में यंग प्रोफेशनल्स एकेडमी. तीनों जगह का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है. चर्नी रोड एंड अंधेरी में रेगुलर एंड क्रैश बोथ विल टेक प्लेस. बोरीवली में सिर्फ क्रैश कोर्स होगा. एंड जहां तक आईपीसीसी है, वहां सिर्फ चर्नी रोड में सिर्फ ज्ञान विजय एकेडमी में होगा. आई विल बी अपलोडिंग ऑल द अमेंडमेंट्स एंड द केस लॉज आल्सो ऑन द वेबसाइट ऑफ ज्ञान विजय एकेडमी. और जिसको वीडियोस से पढ़ना है, वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल इन कॉपरगेट एजुकेट, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है. मेक श्योर दैट यू मेक द इंक्वायरी एट द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट place. Coppergate Educare has been recording my videos over the last 3 years. They are the ones who have been making this available to you. I would like to really thank them, and if you like the videos, you should also be thankful to them. I would like to thank the owner of Coppergate Educare, Mr. L.M. Agarwal, and also Dani sir, who have been really inspirational. I would also like to thank our camera recorders, Prashant and Santosh, who have been working really hard for these videos. तो वीडियो से रिलेटेड जिसको भी इंक्वायरी करना है, please make your inquiries at Coppergate Educare. Please make sure that you don't mix up everything. And जहाँ तक आपको अगर कोई academic doubts है, if there is a particular provision in the law that you are not understanding, अगर सब inquiries करने के बाद में start date, end date सब समझने के बाद में भी आपको अगर कुछ difficulty है, only related to your academic doubts and academic queries, no administration and admission queries, please. You can use my personal number. If you want to call, please call between 9 PM and 11 PM. And आपको WhatsApp करना है तो you can WhatsApp at any point of time. Over the last few years, I have got a lot of love and affection from all my students. There are a few people who deserve to be thanked for this. The inspiration behind the name Gyan Vijay were my great grandparents, my great grandmother, late Srimati Gyan Kaur Surana, and my great grandfather, late Shri Vijaymalji Surana. They are the inspiration behind the name Gyan Vijay. I really would like to thank them, and this name Gyan Vijay Academy is a tribute to them. I would like to thank my grandfather, late Shri Hanumanji Surana, who was the person who always believed that education is a very important thing, and that is what we are following even today. I would like to thank my parents, my father, who I miss a lot, my father, late Shri Narendra Surana, who has been the real reason behind whatever I am, and my mom, who has been a fighter, who has been an inspiration for a lot of things in life, and my backbone, my support system, my everything, my wife, Mrs. Sonal Surana. They are the supporters, and they are the ones due to whom I am whatever I am. I thank all these people. These are the important people of my life. So make sure that you have taken down all the contact details properly and you make your inquiries at the specific place. Okay.
नाउ आज का सब्जेक्ट क्या है? अब ये तो इंक्वायरी वाली बातें भी हो गई, इमोशनल भी बातें हो गई, अब मजे वाली चीज करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मजा आता है टैक्स पढ़ने में. टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी. इंपॉर्टेंट इसलिए भी बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड by the Finance Act of 2016. So basically this is an amendment which will be useful for CA final May 17 and November 17 students. The concept of equalization levy which proposes to bring taxation on e-commerce transactions. Government बोलती है the digital economy is growing at a rate of 10%. In the digital domain, the link between an activity and a jurisdiction has dissolved. भारी भारी लैंग्वेज, अपन अपनी सिंपल भाषा में समझते हैं. अपना काम टैक्स को इजी बनाना है तो बारी बारी लैंग्वेज, लिंक बिटवीन दिस एंड दैट हैज डिसॉल्व, आप पागल हो जाओगे. सिंपल भाषा में समझो. पुराने जमाने में हम लोग सोचते थे कि अगर रुपया कमाना है तो दुकान डालना पड़ेगा. यू विल हैव टू ओपन अ शॉप टू अर्न मनी. ऊपर जय माता दी, श्री गणेशाय नमः, फ्लिपकार्ट. आज फ्लिपकार्ट ने कोई दुकान नहीं खोली है. अगर एक आदमी को दुकान खोल के पैसा कमाना है, यू हैव टू पे रेंट, you have to pay electricity bill, you have to pay salary to your staff, cleaning का स्टाफ अलग रखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ अलग रखना पड़ता है, सेल्स का स्टाफ अलग रखना पड़ता है. उसमें गुड्स बिके ना बिके पता नहीं. वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमको इतना कॉस्टिंग तो आता है दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड, चाहे एक भी प्रोडक्ट बिके या ना बिके. प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, सेल्स बहुत करो या कॉस्ट को कम करो. अगर हम फिजिकली दुकान खोले बिना इंटरनेट पे एक दुकान खोल देंगे तो क्या मजा आएगा. जो खरीदने वाला है उसका भी काम इजी है एंड द सेलर का काम भी इजी है. सेलर के तो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो खत्म हो जाएंगे, उसको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस और इंटरनेट डोमेन चार्जेस जो लगना है वो लगना है. और जहां तक बायर का सवाल है, आज मुझे मेरी वाइफ के लिए परफ्यूम खरीदना था तो मुंबई में एक पर्टिकुलर जगह है, क्राफर्ड मार्केट है, जहां पे परफ्यूम्स अच्छी क्वालिटी के कम प्राइस पे मिलते हैं. ऑल द वे ट्रैवल करना है, ट्रैफिक, वहां पे लोग चिपकते हैं, इरिटेशन होता है एक टाइम के बाद में. कितना आराम से अगर मैं घर पे बैठूं, एसी चालू करूं, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोलूं, अमेज़न का वेबसाइट खोलूं, अलीबाबा हैज आल्सो गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी इन रीसेंट टाइम्स, उसके अंदर प्रोडक्ट को देखूं, प्राइस देखूं, डिस्काउंट भी मिलता है, क्लिक करूं, घर पे डिलीवरी देता है, नहीं पसंद आया तो वापस भी लेके जाता है. तो सब इस डिजिटल इकोनॉमी को पसंद कर रहे हैं. सेलर इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि कॉस्ट खत्म हो रहा है. बायर इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि उसको कन्वीनियंस हो रहा है, प्लस सस्ता भी पड़ रहा है. हमारी क्या हैबिट हो गई है, वी गो टू विजय सेल्स वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, सारा प्रोडक्ट देख लिया, मॉडल नंबर देख लिया, फोटो खींच के घर पे आए, अमेज़न पे वही मॉडल नंबर डाला और डिस्काउंट पे ऑर्डर कर दिया. मारवाड़ी समझ में आया. तो नाउ अंडरस्टैंड, इस डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही है. जब तक फ्लिपकार्ट इंडिया में है, बायर सेलर दोनों इंडिया में है, नो प्रॉब्लम, फ्लिपकार्ट का इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. लेकिन when the buyer and the seller are in different tax jurisdiction, तो आप कैसे डिसाइड करोगे दैट ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ कि इंडिया के बाहर हुआ. आप अपने घर पे बैठ के परचेस बटन क्लिक करते हो, ऑर्डर क्लिक करते हो, ऑर्डर जाता है किसी फॉरेन की कंपनी को, फॉरेन की कंपनी किसी और कंट्री से आपको डिलीवरी भेजती है, आप पेमेंट भी आजकल ऑनलाइन होता है. तो ये ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ या बाहर हुआ. द इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स इज द नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड जुरिस्डिक्शन. मतलब जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि आपने काम कहां किया और पैसा कहां कमाया. लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन, कि आपका जो बाइंग एंड सेलिंग हुआ, जो पेमेंट हुआ, वो कहां पे हुआ, एंड हु शुड बी द टैक्स पेयर. ऑब्वियसली सेलर विल बी द टैक्स पेयर, लेकिन वो तो बोल देगा मैं नॉन रेजिडेंट हूं. नॉन रेजिडेंट डज नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया. अभी आउटसाइड है कि इंडियन है, बहुत कंफ्यूजन है. तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, जिसका इंडिया भी एक प्रोमिनेंट मेंबर है. दे हैव रिलीज्ड एन एक्शन प्लान, जिसको उन्होंने बोला है द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग एक्शन प्लान. उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया. उन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया कि जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होता है, हम आज तक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को यही समझ रहे थे दैट इफ यू हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एक्चुअली आपने दुकान डाली है तो दैट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. लेकिन OECD बोलता है कि प्लीज गिव रिकॉग्निशन टू वर्चुअल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फिजिकल दुकान डालने की बजाय इंटरनेट पे अपनी दुकान डालती है, जो अपने प्रोडक्ट फिजिकली दुकान खोलने की बजाय इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट बेचती है, तो प्लीज गिव रिकॉग्निशन टू अ वर्चुअल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. और वर्चुअल वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके ऊपर भी कुछ कुछ टैक्स लगाओ. ये तो रिकमेंडेशन था. अब रिकमेंडेशन गया भाड़ में, अमेंडमेंट क्या आया. इस रिकमेंडेशन को हमने इनकम टैक्स में कैसे इनकॉर्पोरेट किया. व्हाट इज द चेंज दैट वी हैव गॉट इन इनकम टैक्स ड्यू टू दिस रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD का BEPS एक्शन प्लान. इनकम टैक्स के अंदर हम लेके आए समथिंग कॉल्ड एन इक्वलाइजेशन लेवी. व्हाट इज दिस इक्वलाइजेशन लेवी.
अगर एक रेसिडेंट जो इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, या अगर एक नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली फॉर बिजनेस है, वो पेमेंट कर रहा है फॉर अ स्पेसिफाइड सर्विस टू अ नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और इंडिया वाले इस रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को स्पेसिफाइड सर्विस, व्हाट इज स्पेसिफाइड सर्विस? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, एनी अदर नोटिफाइड, उसके बारे में 2 मिनट के बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लो, अगेन भारी वाली लैंग्वेज, प्रोवाइडिंग डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अपन भारी बात करते हैं, अपन हल्की बात करते हैं। हल्की बात सुनो सुनो, लोग YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ घंटों में उनके व्यूज थाउजेंड्स हो जाते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको क्या लगता है कि वो क्या शाहरुख खान का रईस का ट्रेलर है क्या, कि उसको देखने के लिए लोग बैठे थे? देयर आर सम पीपल हु अपलोड लेक्चर्स और उनका सब कुछ घंटों में हजारों के व्यूज कैसे हो जाते हैं? दीज पीपल पे यूट्यूब टू इंक्रीज द ओवरऑल नंबर ऑफ व्यूज। अगर आपको फेसबुक पे लाइक्स चाहिए तो आप फेसबुक को पैसा देके अपने पेज के लाइक्स बढ़ा सकते हो। मैंने बिना पैसा दिए बढ़ाया है, मेरा जो भी है वो बिना पैसे दिया, मेरा फेसबुक पेज। ओके, सो मेरे को गंदी नजर से मत देखो प्लीज। अगर आप चाहते हो कि गूगल में कोई भी सर्च करे और सबसे पहले आपका नाम आए, यू सेल प्लास्टिक बॉटल्स, और आप चाहते हो कि गूगल में अगर कोई प्लास्टिक बॉटल बेच रहा है तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम आए, यू कैन पे मनी टू गूगल, गूगल आपको ऊपर डाल देगा। गूगल में सर्च टॉप करने का 2 रास्ता होता है। रास्ता नंबर 1, गूगल को पैसा दे दो, सबसे ऊपर आपको ला देगा। और रास्ता नंबर 2, अगर कोई बार बार आप ही को सर्च करता है तो धीरे धीरे यू विल बिकम सर्च टॉपर। मैं मारवाड़ी हूं, मैं पैसा नहीं देता हूं, मैंने सेकंड वाली चीज फॉलो की है। आई एम द गूगल सर्च टॉपर without paying any money, but understand there are people who make payment for online advertisement। YouTube के वीडियो के बीच में ऐड आती है। अगर आप Facebook अपने कंप्यूटर में खोलोगे, नॉट ऑन योर मोबाइल एप्लीकेशन, तो राइट साइड के एक कॉलम में ऐड आती है। These services are being provided by the non-resident to a resident in India for business profession or to a non-resident। तो यहाँ पे एक चीज को आप नोट करना, that ये जो इंडियन पैसा दे रहा है ना, वो बिजनेस पर्पस के लिए दे रहा है। द मनी बीइंग पेड इज फॉर बिजनेस। तो अगर इंडिया का कोई पॉलिटिशियन अपने खुद के प्रमोशन के लिए, वो बिजनेस है ऐसा आप मानते हो, लेकिन वो एक्चुअली बिजनेस नहीं है, इट इज ओनली अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई अपने पर्सनल पर्पस के लिए ऐसा कोई पेमेंट या ऐसा कोई वीडियो या अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कोई वीडियो अपलोड करता है और उसमें यूट्यूब ऐड अगर डलवाता है, तो इन दैट केस दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। मतलब अगर किसी का वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, वीडियो के बीच में एक ऐड आती है, ये जो एडवर्टाइजर है ये वीडियो के बीच में अपनी ऐड डालने के लिए यूट्यूब को पैसा देता है। द बिजनेस इन इंडिया इज मेकिंग पेमेंट टू द नॉन रेसिडेंट यूट्यूब फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, और यूट्यूब इज प्रोवाइडिंग डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो हमने एक कंसेप्ट लाया, द कंसेप्ट का नेम इज इक्वलाइजेशन लेवी। अगर ऐसा कोई भी पेमेंट हुआ एंड द पेमेंट इज मोर देन ₹1 लाख फॉर द ईयर, इस नॉन रेसिडेंट को पूरा मोर देन 1 लाख मिला है, तो दिस नॉन रेसिडेंट विल बी सब्जेक्टेड टू एन इक्वलाइजेशन लेवी एट 6%। मतलब अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। हाउएवर एज ऑफ नाउ ऑनलाइन प्रोडक्ट के डेफिनेशन में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये विंडो छोड़ी है, एनी अदर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समडे इफ दे वांट टू ऐड समथिंग they can add using this। 6% will be payable by this non-resident in the name of equalization levy। ऐसा भारी वाला और वापस नाम यूज किया है, it is basically income tax at 6%, खाली अलग से नाम दिया equalization levy। Obviously because payee is non-resident, the payer in India will have to deduct also in the nature of TDS equalization levy at 6%। तो what are the provisions that have been enacted in income tax for this? जो रिसीवर है यानी कि जो नॉन रेसिडेंट है उसके ऊपर एक बार इक्वलाइजेशन लेवी लग गया, उसके बाद में इस इनकम के ऊपर इंडिया में और कोई टैक्स नहीं लगेगा। यू बेसिकली हैव टू पे 6% एंड रिलैक्स इन लाइफ। आपका वो जो इनकम है जिस पे इक्वलाइजेशन लेवी कट गया है 6% पे, इट विल बी exempt। एंड जहां तक पेयर का सवाल है, द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS in the name of equalization levy at 6%। अगर नहीं किया तो वही जो 40 small a के अंदर disallowance आता है for TDS not deducted, एक नया सब clause ऐड हुआ है that if TDS is not deducted or deducted but not deposited before your return filing due date, so the expense will be
पेयर के लिए एक्सपेंस है ना, पेयर के लिए एक्सपेंस है ना, तो पेयर का एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, उसको बिजनेस प्रोफेशन में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर उसने ड्यू डेट के बाद में पे कर दिया या किसी फ्यूचर ईयर में ये टीडीएस डिडक्ट करके पे कर दिया, तो उस साल उसको वो डिडक्शन, जो नॉर्मल रूल फॉर ऑल नॉन रेसिडेंट पेइज है, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड 100% डिसअलाउड, या फ्यूचर ईयर में अगर आपने पे किया तो जिस ईयर में पे करोगे उस साल में वो अलाउ हो जाएगा। सो पेयर पेई के लिए इट विल बी एग्जेम्प्ट एंड पेयर को टीडीएस डिडक्ट करना है अगर उसको डिडक्शन चाहिए ऑफ द पेमेंट दैट इज बीइंग made. This is the concept of equalization levy. Points to be noted are: payer can be resident doing business in India or non-resident having PE in India. Payee will be a non-resident who otherwise does not have a permanent establishment. मतलब इंडिया की टैक्स जुरिस्डिक्शन से वो अदरवाइज दूर रहने की कोशिश करता है। सर्विस के डेफिनेशन में अब तक तो सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कवर किया दोनों पॉइंट के अंदर, लेकिन कभी भी कुछ भी नोटिफाई हो सकता है। एंड इक्वलाइजेशन लेवी विल कम ओनली इफ द टोटल इज मोर देन 1 लाख। तो आपको 6% भर देना है, वो कट भी जाएगा, आपको भरना अलग से नहीं है, कट जाएगा, फिर आपको कोई और टैक्स नहीं भरना है। एंड पेयर ने अगर डिडक्ट नहीं किया तो उसको एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अंडर इनकम टैक्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। समथिंग लाइक दिस वाज necessary. This is the concept of equalization levy. This is Professor Siddharth Surana. Thank you very much.